Hello everyone. Now I will teach you first chapter of 11th class physical education. Let me start. Once again. So students, now we start our first chapter of physical education and our first chapter name is Changing Trends and Career in Physical Education. First of all, I tell you that always students taking a wrong meaning of physical education. Students think that physical education is only sports and nothing, but it is totally wrong. So step by step, we study what is the actual meaning of physical education. So now we focus on meaning and definition of physical education. Different people have a defined physical education in different ways. A few of these definitions by some eminent people are listed below. तो हम देखेंगे हमारे कुछ ग्रेट राइटर्स की डेफिनेशंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन. First of all, according to R.J. B. Nash, physical education is that phase of the whole field of education that deals with big muscles activities and their related response. It means R.J. Nash कहते हैं फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा फेस है जिसमें हम ओवरऑल स्टडी करते हैं हमारे बिग मसल्स एक्टिविटीज की और उनसे जुड़े हुए रिस्पॉन्स की. अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू J.F. Williams. According to J.F. Williams, physical education is the sum of men's physical activities selected as to kind and conducted as to outcomes. J.F. Williams कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक एक्टिविटी है जो एक मैन सेलेक्ट करता है और उसके थ्रू उसके कुछ आउटकम्स निकल के आते हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें अगर फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन का एक सिंपल मीनिंग ये नहीं है कि अगर कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, मस्कुलर है, तो हम कहेंगे ही इज फिजिकली फिट. नो, एक्चुअल फिजिकल एजुकेशन मीनिंग है व्हेन पर्सन मेंटली एंड फिजिकली फिट, दैट्स वी कॉल्ड टोटली फिट और फिजिकली फिट. इट मीन्स अगर एक पर्सन मेंटली और फिजिकली फिट है तब हम कहेंगे कि वो एक्चुअल में फिट है. नाउ वी डिस्कस सम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. अवर फर्स्ट एम इज physical development. The foremost objective of physical education is physical development. In fact, it leads to the development of our organ systems such as circulatory systems, respiratory systems, nervous systems, muscular systems, and digestive system. Physical education is related to physical activities, and when we perform these activities, there are various effects of these activities in our organ system. These systems witness growth in size, shape, efficiency. Hence, it can be stated that physical development is possible through these objectives of physical education. So, students, physical education का जो एक एम है, it means एक ऑब्जेक्ट है कि आखिर फिजिकल एजुकेशन चाहता क्या है. तो फिजिकल एजुकेशन ये चाहता है कि विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन पीपल डेवलप देयर फिजिकल स्किल्स. सपोज अगर एक बंदा कंटिन्यूसली फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है तो धीरे धीरे उसके जो इंटरनल सिस्टम्स हैं लाइक सर्कुलर सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम धीरे धीरे इनके वर्किंग स्ट्रक्चर इंप्रूव
होगा। और साथ ही साथ जो बंदा कंटिन्यूअसली फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो बॉडी शेप है, साइज है, वो भी इंक्रीज होगा और जो बॉडी एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर एक स्टूडेंट कंटिन्यूसली अपने घर पे बैठा रहता है, ज्यादातर टाइम्स अपने कंप्यूटर गेम्स को देता है, मोबाइल्स को देता है, और इसके अपोजिट एक स्टूडेंट कंटिन्यूसली ग्राउंड परफॉर्म करता है, इट मींस वो ग्राउंड पे जाके क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, एक्सरसाइजेस करता है, तो दोनों की इम्यूनिटी पावर में आपको इजीली डिफरेंस नजर आएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स ग्राउंड पे परफॉर्म करता है वो फिजिकली और मेंटली ज्यादा फिट होगा, और जो स्टूडेंट्स हमेशा घर पे बना रहता है उसका जो इम्यूनिटी पावर होगा वो वीक होगा। Our second aim is mental development. This objective is related to the mental development of an individual. The various physical activities of physical education programs need alertness of mind, deep concentrations, and calculated movements. Moreover, it should be called the indispensable requirement of various physical activities. So students, जो हमारा सेकंड एम है मेंटल डेवलपमेंट, with the help of physical educations we are also increase our mental level. For example हम देखते हैं जो हमारे कई गेम्स होते हैं उनमें एक कंसंट्रेशन की सबसे ज्यादा नीड होती है। अगर हम जनरली बात करें तो कंसंट्रेशन रिक्वायर इन ईच एंड एवरी गेम। जो हमारा कंसंट्रेशन है उसे हमें हर गेम में ही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉलर होता है ऑलवेज उसका कंसंट्रेशन होता है बैट्समैन, और बैट्समैन के जो फुट वर्क करते हैं, इट मींस बैट्समैन के जो फुट वर्क करते हैं उसके थ्रू बॉलर्स को पता चलता है कि मे बी वो किस डायरेक्शन में शॉट हिट करेगा। इसी के जस्ट अपोजिट जो बैट्समैन होता है वो बॉलर की बॉडी लैंग्वेज को कॉन्सेंट्रेट करता है। इट मींस बॉलर का जो रनअप है वो कितना फास्ट है, बॉलर का जो हैंड सर्कुलेशन है वो स्पीड में है, स्लो है, और बॉलर स्लोअर डिलीवरी डालेगा, फास्ट बॉल डालेगा, ये पूरा कंसंट्रेशन करता है एक बैट्समैन। और इसी के थ्रू धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है तो जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो जाता है। Our third aim is social development. This objective is related to the development of social traits which are essential for better adjustment in life. So students, अगर हम easily बात करें कि what is social development, अगर हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स ज्यादातर स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते हैं वो रीजनल लेवल पे खेलते हैं, क्लस्टर लेवल पे खेलते हैं और नेशनल लेवल पे खेलते हैं। अगर वो लकी हैं और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स की तरफ अपना फोकस रखते हैं तो वो इंटरनेशनल भी खेलते हैं। तो जैसे जैसे एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बनाता है उसमें सोशल डेवलपमेंट होना भी स्टार्ट हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट होना कैसे हो जाता है? जनरली हमने स्पोर्ट्स में कुछ बातें सुनी हैं। हमने क्या सुना है स्पोर्ट्स में? टीम स्पिरिट, यानी हमें टीम के लिए खेलना है, हमें एक दूसरे के साथ मिल के खेलना है। और इसी के साथ जब हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, कई जगह के प्लेयर आपस में मिलकर एक किसी गेम को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली अगर हम अपनी क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम में हम देखते हैं कोई प्लेयर केरला से होता है, कोई प्लेयर मुंबई से होता है, कोई प्लेयर पंजाब से होता है, तो कोई प्लेयर बिहार से होता है। और ये सारे प्लेयर्स मिलके एक साथ एक फैमिली की तरह खेलते हैं और टीम वर्क स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू सोशल डेवलपमेंट भी होता है। Our next point is neuromuscular coordinations. This objective is concerned with the better relationship between nervous system and muscular system. The activities of physical education provide ample opportunities for the better neuromuscular coordination. It means neuromuscular coordination. It is directly related with relation between nervous system and muscular system. It means जो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को ऑर्डर करता है उसे हमारी बॉडी कितनी जल्दी कैच करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने आजकल T20 मैचेस देखे हैं, बैट्समैन कितनी जल्दी अपने नर्वस सिस्टम और अपने मस्कुलर सिस्टम में एक रिलेशन क्रिएट कर पाते हैं। बैट्समैन सडनली एक ऐसा शॉट खेलता है जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इससे पता चलता है कि स्पोर्ट्स के थ्रू न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल डेवलपमेंट। सो फ्रेंड,
फिजिकल एजुकेशन के थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। आप देखते होंगे कि हमें स्पोर्ट्स में हमेशा सिखाया जाता है कि ऑलवेज परफॉर्म वेल, हमेशा आप अच्छा परफॉर्म करिए। जीत और हार तो हमेशा एक गेम का पार्ट होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। चाहे हम जीते या हारे, बट हर गेम से हमें कुछ ना कुछ लर्न करना है, तो इससे हम इमोशनली भी स्ट्रांग होने लगते हैं। हम लाइफ के जो थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन्हें काफी फोकस से नोटिस करते हैं और बिना हाइपर हुए अपनी अपॉर्चुनिटी को कैच करते हैं। आवर लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी क्लियर, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, हमारा बॉडी शेप साइज एक राइट डायरेक्शन में ग्रो करता है, जिससे हमारा हेल्थ डेवलप होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो कि आपको फिजिकल एजुकेशन की ये सारे टॉपिक्स काफी इजीली समझ में आए होंगे। बाकी के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।